Standard 10th linear equation in two variables. Here the statements are given to you. You have to read the statement, understand it, frame the equation, and finally solve the equation. All the three things we have to do it over here. So let us. I'm doing the fourth sum, children. The fourth sum says the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. This is the first statement. So from the first statement, try to find what is x, what is y. It is clearly given. Fraction means तो यहाँ पे तो तक क्लियर है कि फ्रैक्शन दिया मीन्स तो तुम्हारा दो अननोन होने का चांसेस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, जब तुम्हारा दो फ्रैक्शन है तो लेट अस टेक न्यूमरेटर एज x, डिनोमिनेटर एज y, बिकॉज फ्रैक्शन में दो अननोन वही हो रहेगा. तो लेट द न्यूमरेटर बी x. Any alphabet we can take, and whatever, and if the alphabet that you are taking should be in a small letter, and the denominator be y. So this is the from the first statement I came to know कि मुझे x and y किसको लेना है. फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. अभी now apply the condition. So you know that whenever two variables are there, minimum two equations we need, then only we can solve the equation. So for finding the two equation, there should be two conditions given to you, and for the conditions, read the question properly. Each statement may give you one condition. See, the denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. So it is clearly given. From the first condition you can write, from the first condition means first statement. But how the equation you can frame, children? The denominator of fraction is means equal to. The denominator means what is denominator? It is y. So the condition is said about y. Denominator is means equal to 4 more than means plus 4. किससे प्लस करना है? 4 more than twice its numerator. Twice its numerator मतलब 2 into numerator, that is numerator is x, 2x. So y is equal to 2 into x plus 4. Now rearranging the above equation. Rearranging the above. Why we are rearranging the above equation? Because we need to write it in the standard form. Rearranging the above equation. So what will I get? I am taking this. I am keeping this 2x here only. Bring this y on the other side. तो plus y इधर हो जाएगा, minus y equals to plus 4 इस तरफ हो जाएगा माइनस. और मैंने 2x को इस तरफ ही रखा है, y को इधर ले आओ, 4 को इधर लेके जाओ. So I wrote this. I am giving this equation number 1. So first condition, I got first equation. Now come to the second statement. What is the second statement? Denominator becomes 12 times the numerator if means again denominator means y become 12 times the numerator, लेकिन कभी if both the numerator and denominator is reduced by 6. So here we are reducing if denominator and numerator is reduced by 6, we will get new numerator. Therefore which is the new numerator, children? पुराना न्यूमरेटर क्या था अपना? पुराना न्यूमरेटर हमने x लिया था, तो नया न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 6 और न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? हो जाएगा y माइनस 6. राइट? अभी ये तो न्यू न्यूमरेटर न्यू डिनोमिनेटर मिला, अभी हमको इसका इक्वेशंस फ्रेम करना है. सो इक्वेशन के लिए रीड द कंडीशन अगेन. द सेकेंड व्हाट इज गिवन टू यू? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस. वो तो रिड्यूस कर दिया हमने, तो जो नया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला उसके लिए क्या कंडीशन दिया है? ये तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा? बिकम्स मीन्स इक्वल टू. व्हाट इज न्यू डिनोमिनेटर? दैट इज y माइनस 6 बिकम्स मीन्स इक्वल्स टू 12 टाइम्स 12 इंटू न्यूमरेटर, ऑफकोर्स न्यू न्यूमरेटर x माइनस 6. क्योंकि क्लियरली देखा भी होगा इफ मतलब ये करने के बाद ही वो कंडीशन अप्लाई करना है. अभी उसको ब्रैकेट रहेगा तो पहला ब्रैकेट दिखा तो ब्रैकेट ओपन कर लो. 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 6 2 12 6 1 6 72. अभी इक्वेशन को रीअरेंज करो. हाउ टू रीअरेंज द इक्वेशन?
आई एम कीपिंग x here ओनली, 12x को उधर ही रखो, प्लस वाई इधर आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -6 उधर ही रहने दो, -72 इधर आ जाएगा तो +72 हो जाएगा। ठीक है, 12x इधर ही है, प्लस वाई इधर माइनस वाई, -6 को हमने वहीं पे रखा, -72 वो साइड लेके गया, +72। सो योर इक्वेशन बिकम्स 12x minus y is equals to 72 minus 6 is 66 plus 66, sign of greater number. So this is equation number 2. Now you have to solve this equation. How to solve this equation? 2x minus y is equal to -4, 12x minus y is equal to 66. Okay, these are the two equations. Now we have to solve the equation. What is the first rule I said while you are solving the two equations simultaneously? So सबसे पहला मेथड है कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y दोनों चेक करो। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में 2 है और ये 12 है, 1, और इधर y का दोनों का 1 1 है, तो y का कोएफिशिएंट सेम है। तो अगर तुम्हारा कोएफिशिएंट अगर सेम मिला तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या चेक करने वाला है कि वेदर द साइन इज सेम और ऑपोजिट। किसका साइन? y का कोएफिशिएंट का साइन। y का कोएफिशिएंट का साइन खाली देख रहे हैं क्योंकि मुझे y का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम मिला है, तो मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या देखना है, उन दोनों का साइन चेक करना है। अभी यहाँ पे साइन दोनों का सेम है, तो साइन अगर सेम है तो आई कैन नॉट कैंसिल। क्यों? क्योंकि दो सेम टर्म को कैंसिल करने के लिए मुझे उनको इक्वल भी बनाना पड़ता है और ऑपोजिट भी करना पड़ता है। इक्वल तो है पहले से, लेकिन ऑपोजिट नहीं है, तो ऑपोजिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। अगर ये ऑलरेडी ऑपोजिट रहता तो डायरेक्टली एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा? सब्सट्रैक्शन। हाउ विल आई राइट द स्टेटमेंट? सब्सट्रैक्टिंग equation 2, subtracting equation 2 from equation 1. So equation 1 means from के बाद जो equation लिखा है वो फर्स्ट पोजीशन में लिखना है। मीन्स 2x minus y is equals to -4 and then 12x minus y is equals to 66. सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो सेकेंड पोजीशन में जो है उसका पूरा साइन चेंज हो जाता है। सब्सट्रैक्शन मीन्स चेंज ऑफ साइन। 12x बिकम माइनस, दिस माइनस वाई बिकम प्लस वाई, प्लस 66 बिकम -66. नाउ सॉल्व दिस। सो यू कैन सी प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसल, 2 minus 12 will give me -10x, and here -44 and -66 will give me minus plus 66 plus 4 is 70. आंसर का साइन ग्रेटर नंबर का साइन। माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड, इट गॉट कैंसल्ड। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? 10x इज इक्वल्स टू 70. सो x विल बिकम, मुझे x फाइंड आउट करना है, तो 70/10, therefore x is equals to 7. I got value of x as 7. Next thing what you will do, put x equal to 7, x मिल गया, मुझे y फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है? x equal to 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में भी डालो चलेगा, 2 में भी डालो चलेगा। आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, यू कैन राइट सब्स्टिट्यूट ऑल्सो। ओके, तो 2x minus y is equals to -4. So 2 into x means 7 minus y is equals to -4, that is 14 minus y is equals to -4. Now I need to find the value of y, और जैसा मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर जितना हो सके उतना बच के रहो, तो माइनस वाई को मुझे इधर से हटाना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, तो इस तरफ आ जाएगा, प्लस वाई हो गया, तो ये इधर -4 को इस तरफ लेके आओ, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +4. तो y is equal to what you will get? 18. So you got x as value of x as 7 and y as 18. Therefore your fraction becomes, fraction means numerator upon denominator, that means x upon y. So x is 7 and y is 18. So this is the required fraction, 7/18. Solutions. So let us start with the solution, children. Here two unknown is weight of the box. So let the weight of box A
be x and box B be y. उतना ले लिया मैंने. नाउ x kg एंड y kg. ठीक है. लेट द वेट ऑफ द बॉक्स ए बी x kg एंड बॉक्स बी बी y kg. अभी यहाँ पे क्या दिया है, when 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, it weight 10 tons. मीन्स उसने से कैपेसिटी फुल कर दिया. तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन when I read the question what are the two unknowns given to me, it is very much clear कि weight of the box two unknown है. तो हमने क्या लिया कि let the weight of box A हमने x ले लिया और weight of box B भी y, ये हमने ले लिया. अब उसके बाद हमको कंडीशन अप्लाई करना है, जैसा कि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको कंडीशन चाहिए, राइट. तो कंडीशंस के लिए हमको स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा. सो व्हाट डज द स्टेटमेंट से? द स्टेटमेंट क्लियरली सेज दैट हाउ मेनी बॉक्सेस when 150 boxes of type A, मतलब 150 boxes of number of box दिए. कितना बॉक्स? एक नंबर ए का कितना बॉक्स है? 150 बॉक्स. तो हमारे पास कितना ए का बॉक्स लेना पड़ेगा? 150 इंटू ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ बी. उतना तुमने अगर वो ट्रक में डाल दिया तो ट्रक का उसका कैपेसिटी फुल हो गया. कैसा मालूम पड़ा? देखो इट वेट 10 टन्स. मैं क्लियरली मेंशन किया है. सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी विल राइट 150 boxes of A, that is 150 into box A मतलब X plus 100 boxes of box B. 100 मतलब नंबर 100 into box B कितना हमारे पास? Y. एक बॉक्स का वेट है Y, तो 100 बॉक्स का कितना होएगा? 100 Y. एक बॉक्स का वेट है हमारे पास X. हमने कितना बॉक्स डाला उसके अंदर? 150. तो टोटल वेट कितना हो गया? 150 इंटू X बॉक्स A का. और बॉक्स बी का कितना वेट हमारे पास है? 100 इंटू वाई. एक बॉक्स का वाई है, ऐसे कितना बॉक्स है हमारे पास? 100. तो 100 इंटू वाई और दोनों मिला के 10 टर्न्स दिया. 10 टर्न्स मतलब यू नो दैट 1 टर्न इज इक्वल्स टू 1000 kg. ओके, ये हमने kg में लिया है. तो 1 टर्न इज इक्वल टू 1000. सिंस यू शुड राइट सिंस 1 टर्न इक्वल टू 1000 kg है, तो 10 टर्न मतलब क्या होगा? 10,000 kg. सब kg में हो गया. अभी हमने क्या किया? उसको सिंप्लीफाई किया. हमने डिवाइडिंग बाय, सबको हमने क्या किया? डिवाइडिंग बाय हमने, यू कैन सी दैट एक तो दोनों 10 में भी जाती है 5 में भी जाता है. 50 से डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग बाय 50 तो हमको क्या मिलेगा? 150 अपॉन 50. सबको 50 से डिवाइड किया. ये चलो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, बट डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर. नो नीड टू राइट एंड शो दैट, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो, इसलिए मैंने लिख के बता रही हूँ. 3x प्लस ए बी कट हो जाएगा 0 0. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा y, 0 0 कट, 5 2 ज़ा 10 और 200. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाला. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. सिमिलरली गो विद द सेकेंड कंडीशन. सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में भी क्या दिया हमारे पास? एक इक्वेशन मिला. अभी सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग फिर से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट किधर से स्टार्ट हो रहा है? इन द ट्रक वेट बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब ए का भी कितना बॉक्स हम लोग लोड कर रहे हैं? 260. सो 260 boxes of type A means total A का कितना बॉक्स हुआ? 260 into A are loaded in the truck. It can accommodate 40 box of type B so that it is fully loaded. मतलब A का 260 बॉक्स, सिंपल सा लैंग्वेज, A का 260 और B का 40. तो हमारा सेकेंड कंडीशन में क्या होएगा? सेम 260 into X, A बॉक्स नंबर A प्लस B का हम लोग यहाँ पे कितना लेके जा रहा है? 40. 40 into B, जब हमने पूरा लिया B मतलब Y, तो कितना लोड हो गया इसका? लोड फुल लोड मतलब 10,000. दैट इज 260x प्लस 40y. नाउ हियर व्हाट यू कैन से, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर? 0 तो जाती है, 0 तो कैंसिल होगा, साथ में 2 में भी सब जा रहे हैं. तो हम लोग क्या है? डिवाइडिंग बाय 20. डिवाइडिंग अबाव इक्वेशन
बाई 20। सबको 20 से डिवाइड करो। 0 0 0 0 0 0, 2 1 जा 2 13 जा तो 13x प्लस 2 1 जा 2 2 जा 2y इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 5 जा मतलब 500। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। So here equation 1 and equation 2 I already wrote here. Equation 1 is 3x plus 2y 200, 13x plus 2y 500 is equation 2। मैंने क्या बताया पहला रूल, चेक द कोएफिशिएंट, x का 3 and 13, y का 2 and 2। y तो यहाँ पे किसका सेम है, y का सेम है। तो मैंने क्या बताया जैसा y जिसका कोएफिशिएंट सेम मिला, नेक्स्ट चीज़ आप क्या चेक करेंगे, साइन, आर द साइन सेम और ऑपोजिट। तो यहाँ पे हमारा साइन चेक करो, दोनों का प्लस प्लस, साइन सेम है तो मुझे ऑपोजिट करना पड़ेगा, और ऑपोजिट करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। सो हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखा उसको फर्स्ट पोजीशन में लिखना है। तो 1 लिखा तो 1 इक्वेशन को फर्स्ट पोजीशन में और सेकेंड पोजीशन में सेकेंड इक्वेशन। सब्सट्रैक्शन मीन्स चेंज ऑफ साइन, सेकेंड पोजीशन वाला इक्वेशन का साइन चेंज होगा। प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 3 माइनस 13 इज माइनस 10। क्यों माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस माइनस करना है और आंसर का साइन ग्रेटर नंबर का साइन, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 300। सो सेम वे हियर यू कैन सी माइनस माइनस कैंसिल दोनों जगह से, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 10। तो x is equals to 30. I got the value of x as 30. Now put x equals to 30 in equation number 1 में डालो या फिर 2 में डालो, हम 1 पे डालते हैं। in equation number 1 that is 3x plus 2y equals to 200. So 3 into x के जगह में 30 plus 2y equals to 200, that is 90 plus 2y is equals to 200. So 2y is equals to 200 minus 90. So 2y is equals to 110. Y is equal to 110 upon 2. Therefore y is equals to 55 kg. That is last में statement, and therefore weight of each box of A is 30 kg and weight of each box of B is equal to 55 kg. This is your answer. I hope it is clear for you children. If you have any doubt, you can go through this video again and watch it again and make it very clear.